ओके चलो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. जस्ट टेल मी स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. Okay, yes, it's visible. Yes, ma'am. Okay, so our second chapter is that is polynomials. Do you know about polynomials? What are the polynomials? Example. Yes, ma'am. Yes, what are the polynomials? मैम कौन बताएगा? आप बताओ भार्गवी. Ma'am, the expression which is having the variable and constant and its terms are differentiated by the signs minus and plus. ठीक है. Okay, yes, Ridhima, what are the polynomials? Ma'am, they are the algebraic expressions that consist variable and constants. ठीक है. Okay, so the polynomial is an algebraic expression. Yes, definitely polynomial is an algebraic expression. But what is an algebraic expression? ठीक है, पॉलिनोमियल तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. बट व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? यस सौम्या. Ma'am, an algebraic expression has variables, constants, and Algebraic expression is the combination of variables ma'am, we can also and name constants. mathematical phrase, right? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, राइट? नाउ व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? यस स्वरा, व्हाट इज वेरिएबल? Which has not have fixed value. हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जिनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. हैव नो फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है. एंड व्हाट आर द कांस्टेंट? That have fixed value like हैव 2, फिक्स्ड 3, वैल्यू, जिसकी यस जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. अब यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू से क्या मीनिंग है कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया x plus 2 is equals to 3. So according to this question, the value of x is 1 just because 1 plus 2 is equals to 3. But मैं question change कर दूं, x plus 3 is equals to 3. So in this question, the value of x is 0. मतलब वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन पे बेस्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. सो हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड. आप उसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो. हैव फिक्स्ड वैल्यू का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा. सो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 2 बन जाएगा या 2 3 बन जाएगा? 3 3 रहने वाला है, 2 2 रहने वाला है, मतलब उसकी वैल्यूज फिक्स्ड है. सो कोई भी नंबर इज द कांस्टेंट वैल्यू. Is it clear what are variable, what are constant and what is the algebraic expression? Algebraic expression क्या होता है? Algebraic expression is the combination of variables and constant. Just like we have x plus 2, we have x square plus 3x, we have x plus 1 upon x, we have x power minus 2 plus 2, 4. Right, so these are the algebraic expression. अब ये सब algebraic expressions हैं. As Ridhima said कि a polynomial is a algebraic expression consist of variable, constant and powers, right? So Ridhima, all these algebraic expressions are polynomial? No, ma'am. No. Why? Ma'am, because it is a property of polynomial that the power should not be negative, Okay. and the power shouldn't be in the fraction form. Yes, the power shouldn't be a fraction form, the power shouldn't be negative. Basically, we can say that the power should be a whole number.
So इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, polynomial is also a part of algebraic expression. Polynomial भी algebraic expression का एक part है, right? For example, आपके स्कूल में you are 30 students, आप लोग 30 students हैं, all are very good in academics, all are very good in sports and all, सब में बहुत अच्छे हैं सब students, like but there is a one student जो बहुत ही well behaved है, मतलब like सब चीजों में तो वो अच्छा है ही, बट लाइक वो शैतानी भी नहीं करता, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ही इज द वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। सो टीचर क्या करते हैं कि अच्छा दिस स्टूडेंट, यस दिस इज अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, ऑल आर द स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स हैं, राइट, सब बहुत अच्छे हैं, बट द वन इज वेल बिहेव्ड, मतलब उसको वो एक आइडेंटिफाई हो जाता है क्लास में। ऐसा होता है कभी कि लाइक कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि अच्छा उसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस। सो बेसिकली वी कैन से दैट द पॉलिनोमियल इज अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल बिहेव्ड हियर? द पावर शुडंट बी नेगेटिव, द वेरिएबल कांट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, पावर कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती है। सो बेसिकली द पावर शुड बी होल नंबर, मतलब पावर आपकी कैसी होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट वहां पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, लाइक द वेरिएबल कांट बी इन डिनोमिनेटर, द पावर कांट नेगेटिव। सो इस तरह से, इज इट क्लियर व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सबको क्लियर है व्हाट इज द पॉलिनोमियल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पॉलिनोमियल, यस मैम, बेटा। मैम अगर 1/x स्क्वायर है फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा? नहीं, 1/x इज नॉट द पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/x का मतलब है x रेज टू पावर -1, और ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो नॉट अ पॉलिनोमियल। Okay, so for example, I have a polynomial just like x raised to power 4 plus x cube plus 2x square plus 8. This is the polynomial. What is our terms? Here are the some terms related to polynomial. What are the terms? सबसे पहले तो terms क्या होती है, ठीक है? What are the terms? Terms each part separated by plus or minus. जैसे इसमें हमने प्लस से इनको सेपरेट किया है। वी हैव 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स है हमारे पास? हाउ मेनी टर्म्स वी हैव इन दिस पॉलिनोमियल? वी हैव 4 टर्म्स, और हमने उसको प्लस से सेपरेट किया है। ऑल्सो वी कैन सेपरेटेड इट बाय नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, बट नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, नॉट इन डिविजन। आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई 5 आप कुछ भी कर दीजिए, बट दिस इज अ सिंगल टर्म, ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। बट जहां आपने उसको प्लस और माइनस से सेपरेट किया, सो वो फिर काउंटिंग में आ जाती है कि लाइक वी हैव द 4 टर्म्स, राइट। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइंग वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जिस नंबर की मल्टीप्लाई होती है इज नोन एज द कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ये साक्षी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4? 2. Very good. What is the coefficient of x cube? Aditri. What is the coefficient of x cube? 2. No, x cube। देखो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, जब कोई भी नंबर नहीं है तो फिर उसकी coefficient उसका 1 हो जाता है। Okay. What is the coefficient of x square, Naisha? Ma'am, 2. एंड ओके, बाकी तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, टर्म विदाउट वेरिएबल। सो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म हियर, अनेगा? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? For x square, 8. कांस्टेंट मींस दैट टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। Yeah, then 8.
8. So 8 is the constant term. Now what is the degree of the polynomial? If I talk about the degree of this polynomial, तो degree होती है that is the highest power of variable. Variable की highest power उसकी degree होती है. Yes Swara, what is the degree of this polynomial? 4. 4. Just because the highest power is 4, so degree of this polynomial is 4. Now it is clear what is polynomial, what are terms, what is coefficient, constant term and degree. Is there any doubt in all these terms? No doubt. Okay. You can just note down this and उसके after आगे का discuss करते हैं. Yes बेटा. Yes Aditri. Ma'am, I didn't say anything. Okay, just note down this definition. What is a polynomial and the terms related to polynomial? Okay, can you tell me what is the degree of this polynomial x cube plus 5? What is the degree of this polynomial? 3. 3 is the degree. Highest power is the degree of that polynomial. So basically a polynomial is an algebraic expression. Algebraic expression ही होता है made up of variables, constant and powers. Right, but power should be whole number. Power आपकी whole number होनी चाहिए, can't be negative and can't be in fraction. Fraction और negative नहीं होनी चाहिए. Done? Okay, so these are the terms related to the polynomial. Basic है. You can just write the example. Example लिख के आप उसके साथ terms को mention कर दीजिए. Like we have the 4 terms, the coefficients and the constant term, also the degree of the polynomial. Okay, beta. So the terms are separated by positive and negative, मतलब plus minus से separate होती हैं. Coefficients are the number multiplying variable, जो variable के साथ multiply हो जाते हैं, मतलब multiplication में होते हैं. Constant term without variable जो भी term है, this is the constant term. And the degree of the polynomial is the highest power of that polynomial. Polynomial की जो भी highest power है, वो उसकी degree होती है. Okay. Next we have types of polynomials, but before this just tell me what is the degree of x cube plus 3x4 plus 2x. What is the degree of this polynomial? Yes Aniga. I'm 4. Degree is 4, so इसकी degree हो जाएगी 4. Yes, very good. Yes, Swara, you just tell me this is a polynomial or not. Is No, this a ma'am. polynomial? No. Why? Because in denominator x is there. Yes, in denominator there is x square, तो ये polynomial नहीं है. Yes, Ridhima, can you tell me this is a polynomial or not? No. No, this is not the polynomial. Yes, Soumya, can you tell like this is a polynomial or not? Ma'am, if you convert it, yes. Yes, this is a polynomial just because we can divide x raised to power 4 by x, तो cube आ जाएगा वहाँ पर. So हमें क्वेश्चन करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में we have variable तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. This is like x cube plus x. ये कुछ इस तरह से है. So yes, this is a polynomial. Is it clear? Okay. So next is type of polynomials. Type of polynomials are based on 2, that is on the base of their degree and on the base of their terms. Based on terms and based on degree. जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो फिर टर्म का कोई रिलेशन नहीं है और टर्म की बात कर रहे हैं तो डिग्री का कोई रिलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द टर्म अगर 1 होती है so the polynomial is monomial. The polynomial is monomial. If we have 2 terms
then the polynomial is binomial. Can you tell me if we have 3 terms, then what we can say? Trinomial. Trinomial. Very good, Naisha. So this is trinomial. Yes. So one term का यहाँ पर क्या मीनिंग है? Only we have one term. Maybe उसकी डिग्री 2 है, maybe उसकी डिग्री 3 है, 4 है, कुछ भी है. So we have only one term. Term 1 होनी चाहिए. In the binomial we have 2 terms. जरूरी नहीं है कि वो डिग्री 1 हो, 2 हो. डिग्री का कोई रोल नहीं. In the trinomial we have 3 terms. For example, ये है. So this is a trinomial. Binomial में आपका ऐसे भी हो सकता है x cube plus 2x. मोनोमियल में आपका x क्यूब भी हो सकता है. सो यहाँ पे डिग्री का कोई रिलेशन नहीं है. वी जस्ट हैव टू चेक द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर डिग्री 1 होती है, इफ द डिग्री इज 1, देन द पॉलिनोमियल इज लीनियर. पॉलिनोमियल कैसा होगा आपका? लीनियर. और उस लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b. यस अनेगा? Nothing, ma'am. It was accident. What, beta? I didn't mean to raise my hand. If we have 2 degree, yes beta. For example, if we have one term in a polynomial, मतलब single term है हमारे पास, other नहीं है, so this is monomial. If we have 2 terms, maybe the degree of the 2 terms is 3, 4, 5, anything, but only the 2 terms. Terms are separated by plus or negative sign, right? Addition, subtraction से separate होती है. So we have 2 terms. The first is x and the second is 2, right? So this is binomial. If we have 3 terms, so this is trinomial. Is it clear? Yes, ma'am. I Okay. didn't mean to raise my hand. I was silent. Okay, so if I based on degree, अगर हम उसको separate करते हैं, so if I have 1 degree, so the polynomial is linear. और linear polynomial की general form होती है ax plus b. उसी form में आपको मिलेगा. Maybe the value of a is 1, maybe the value of b is 0, कुछ भी हो सकता है, but इसी form में होता है. For example, like 2x plus 2x भी हो सकता है, 2x plus 0, so we can write it as 2x. so this is linear. मतलब ऐसा नहीं है कि वो ax plus b की फॉर्म में नहीं है, वो ax plus b की फॉर्म में है, but the value of b is 0. ठीक है? Okay. If the degree is 2, can you tell me which type of polynomial? Quadratic. Quadratic. Very good. If we have the degree 2, so the polynomial is quadratic. Quadratic polynomial की general form होती है ax square plus bx plus c. Right? If we have the 3 degree, then the polynomial is cubic. And can you tell me what is the general form of cubic polynomial? Anyone? Ma'am, yeah. Yes, Soumya? Ma'am, ax cube plus bx square Very good. cx plus Mhm. d. D, where in quadratic c is the constant term and in cubic d is the constant term, right? So yes, this is the quadratic cubic, and if we have the degree 4, so this is known as biquadratic. If the degree is 4, then this is known as the biquadratic. So basically on the basis of their terms अगर हम बात कर रहे हैं, so if we have one term, the polynomial is monomial. If we have 2 terms, the polynomial is binomial. If we have 3 terms, the polynomial is trinomial. Maybe the degree कुछ भी हो सकती है, right? When I talk about based on the degree, अगर degree 1 है, so yes, this is the linear equation. ठीक है? If the degree is 2, so it is quadratic, right? इसमें terms कुछ भी हो सकती है. If the degree is 3, so the polynomial is cubic, and if the degree is 4, so the polynomial is biquadratic. Is there any doubt? Anyone? Okay. Aditri, can you just tell me, beta, this is quadratic or cubic? Ma'am, cubic. Cubic. Or this is binomial or trinomial or monomial?
Binomial. Yes, this is binomial just because we have two terms. हमारे पास two terms है. Terms are always separated by addition and subtraction, not by multiplication, not by division. Multiplication division से separate नहीं होती है. Always by addition and the subtraction. Right? So in this we have two terms, so it is binomial, and on the basis of their degree, yes, this is a cubic polynomial. Very good. Yes, Swara, if we have three terms in a polynomial, so it is trinomial or cubic? Trinomial, ma'am. Trinomial. And if we have only one term, but the term is having degree 3, so is it monomial or cubic? Monomial. It is both monomial and cubic also, just because उसकी highest degree 3 है. मैंने बोला if I have a polynomial like x cube, so yes, this is monomial and cubic also. क्योंकि one term है, तो yes, this is monomial, और उसकी degree 3 है, तो yes, this is a cubic polynomial. Okay, done beta? Ma'am, can two Yes, Soumya? can two different algebraic expression have the same like values, degree or values? Yes, definitely. For example, we have x square plus 5x plus 6. Yes, this having 2 degree. We have x square plus 7x plus 6. We have so many quadratic equations. 8th and 9th class में आप लोगों ने कितने सारे middle term splitting use करें? So when they have the middle term splitting, they have the same value. No, they don't have the same value. I am saying कि आप डिग्री की बात कर रहे हो कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो सकती है क्या? यस, हो सकती है उसकी डिग्री सेम. Like we have so many different polynomials. Value same मतलब उसके आप roots की बात कर रहे हो. Roots की बात कर रहे हो. It depend बेटा. Ma'am, Yes, Anega. ma'am, is there a standard form for biquadratic as well? Standard form of biquadratic basically the square of ax square plus bx plus c. Whole square. Whole square of ax square plus bx plus c. तो जब आप उसको वापस से पूरा स्क्वायर करोगे, you will get the biquadratic. बाइक्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है कि क्वाड्रेटिक का ही स्क्वायर किया हुआ है, राइट? ओके, सो सौम्या, जैसे आप बोल रहे हो अभी बेटा कि लाइक सेम वैल्यूज हो सकती हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल वी हैव जस्ट 1 मिनट, वी हैव a quadratic polynomial just like x square plus 9 minus 6x, right? So इसका मतलब this is right x minus 3 whole square, and also अगर आप x square minus 9 के रूट्स करोगे तो 3 और minus 3 आ जाएंगे, right? और यहाँ पर 3 3 आ रहे हैं. So basically like एक रूट सेम आ गया, but yes, this is the possibility कि all the roots will be same भी आ सकते हैं. So there is a possibility. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है कि उसी मतलब उसके लाइक किसी के अगर 2 और -2 रूट्स आ रहे हैं तो वो किसी और के नहीं आएंगे, बट उस इक्वेशन के रूट्स यूनिक होंगे, मतलब उसकी और कोई वैल्यू नहीं होगी. ओके, सो यस, कंप्लीटेड बेटा. ओके, नेक्स्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो अभी सौम्या डिस्कस कर रही थी, रूट्स की जो बात कर रही थी, दैट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. वी कैन से जीरोस और आल्सो वी कैन से रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी 8th 9th क्लास में आप लोगों ने फैक्टर्स बहुत अच्छे से करे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के, राइट? फॉर एग्जांपल, आर यू एबल टू फाइंड द रूट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? Yes, ma'am. Can you tell me the factors of this polynomial? -6x plus 1x. No, I want the factors of this polynomial. Factors. You can use the middle term splitting or any method. +3 and +2. +3 and +2. I'm asking the factors. Swara, yes, you are
right? But you are telling the zeros. I'm asking the factors, just like आप कैसे करते थे कि 6 के ऐसे factors करने हैं कि प्लस करके 5 आ जाए. So x square minus 3x minus 2x plus 6. Do you remember the middle term splitting method? बहुत काम आने वाला है इसमें. हाँ, so we can take common x. So x minus 3 बेटा correct है स्वरा आपका आंसर, बस मैं factors की बात कर रही थी. Right, so minus 2 x minus 3. So the factor of this polynomials are x minus 3 and x minus 2. Factors होते हैं कि जब हम उसको multiplication में break कर दिया मैंने. So these are the factors. But जब मैं zeros की बात करती हूँ, so what are the zeros? The value of x, मतलब मे बी आपका पॉलिनोमियल x में है तो x, अगर पॉलिनोमियल y में है तो y, या जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, मतलब जिसकी वैल्यू पुट करने पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है. राइट, द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, तो वो उसके जीरोस हो जाते हैं, उसके रूट्स हो जाते हैं. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं a एंड b, उनका प्रोडक्ट जीरो होता है, सो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इफ a is equals to 0, द पॉसिबिलिटी की लाइक a 0 हो सकता है या फिर b, क्या दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? 0 into 0 नॉट डिफाइन होता है. सो वन टाइम पे a 0 या फिर b 0. तो अगर मैं इसको एक बार इसको 0 पुट कर देती हूँ, आई गेट द वैल्यू 3, और सेकेंड टाइम पे इसको 0 पुट कर देती हूँ, सो आई गेट 2. So the zeros of this polynomials are 2 and 3. Is this clear? Yes, beta. मैम 0 into 0 नॉट डिफाइन होता है. Yes, बेटा 0 into 0 नहीं होता है. अगर प्रोडक्ट उनका 0 है तो वन टाइम पे वन ही वैल्यू 0 है. फॉर एग्जाम्पल देखो, या तो 2 into 0 का आंसर भी 0 है, 0 into 3 का आंसर भी 0 है, तो किसी एक वैल्यू से ही हो जाता है. यस, तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि मैंने x की ऐसी वैल्यूज पुट की लाइक कि इन द पॉलिनोमियल कि पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए. तो हमें उसको इक्वेट तो करके देखना पड़ेगा ना. अब x की वैल्यू 2 और 3 आई, अब आप 2 इसी पॉलिनोमियल में पुट करो, वन टाइम पे आप 2 पुट करके देखो. 2 स्क्वायर माइनस 5 into 2 plus 6, you will get 0. 0 आ गया. दैट मीन्स 2 is the root or zeros of this polynomial. अगर आप 3 पुट करोगे ना तब भी 0 ही आंसर आएगा. Is it clear? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पॉलिनोमियल के कोई और भी जीरोस हो सकते हैं एक्सेप्ट 2 and 3? या कोई ऐसी वैल्यू है एक्सेप्ट 2 and 3 कि आप उसमें पुट करो और आंसर 0 मिल जाए? तो पॉलिनोमियल के जो जीरोस आते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब आप 2 और 3 के एक्सेप्ट आप कोई और वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपको 0 आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, ओनली 2 and 3 पुट करने पे आपको 0 आंसर मिलेगा. दैट्स व्हाई 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. दैट मींस आफ्टर पुटिंग 2 and 3 वन बाय वन यू विल गेट 0. इज इट क्लियर? आपको 0 मिलेगा. ओके, कैन एनीवन टेल मी कि अगर जैसे 2 and 3 आया, एट मोस्ट कितनी जीरोस आ सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक की ही बात कर रही हूँ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2. व्हाई नॉट 3? व्हाई नॉट 4? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है. यस, जिसकी जितनी डिग्री होती है, फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं उसकी डिग्री 1 होती है, सो वी ओनली गेट ओनली 1 0. हमें सिर्फ एक ही 0 मिलेगा वहां पर. ठीक है, एक ही 0 होगा, उससे ज्यादा नहीं होंगे. सो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी गेट एट मोस्ट 2 zeros. इज इट क्लियर और एनी डाउट? एनीवन? कोई डाउट नहीं है आपको? जीरो समझ में आया? देखो, फैक्टर तक का प्रोसेस अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है. यस, दीज आर द फैक्टर्स, बट उन फैक्टर्स को वन बाय वन 0 के इक्वेट करके वैल्यू फाइंड करना, और उन वैल्यूज को अगर पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 आ रहा है.
अगर आप इस मेथड से करोगे तो डेफिनेटली जीरो ही आएगा क्योंकि वो उसके जीरोस है. सो दीज आर नोन एज द जीरोस और द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन करिए. व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? सो व्हाट आर जीरोस? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिसपे पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. Ridhima, Sakshi, any doubt? Ma'am, if x have power like 4, so its factors all it's have only 4 factors. Yes, if the degree of the polynomial is 4, then you get at most 4 zeros. आपके 4 zeros आएंगे. Ma'am, no more. नहीं, उससे ज्यादा नहीं. Not possible. जितनी उसकी डिग्री है उतने ही जीरोस आएंगे. आप उसकी उतनी ही वैल्यूज को पुट कर सकते. यस, डन बेटा. यस. Zeros can be both positive and negative. व्हाट बेटा? Can the zeros be both positive and negative? Yes, zeros can be positive and negative both. Just like देखो फैक्टर्स आपके ऐसे भी आते थे ना, x plus 3, x minus 2. पॉजिटिव फैक्टर्स भी आते थे, तो पॉजिटिव फैक्टर्स को आप राइट साइड में लेके जाएंगे, दिस विल बिकम नेगेटिव. सो यस, द जीरोस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. यस, डन बेटा. कंप्लीटेड. ओके. Relation between zeros and coefficient for quadratic polynomial. Now this is the general form of the quadratic polynomial, right? Zeros मतलब जो values अभी आपने find की थी. Coefficient मतलब multiplicative number जिससे हम variable को multiply कर रहे हैं. Now for example, अभी मैं इसी question की बात करती हूँ, x square minus 5x plus 6. आपने इसके फैक्टर्स फाइंड किए x minus 3, x minus 2, राइट? इसके जीरोस आए 2 and 3. अब मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है ax square plus bx plus c. सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस आएंगे वो 2 ही आएंगे. कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो जनरली कैन आई से दैट कि इसके जो जीरोस हैं मैं उनकी कुछ नेमिंग कर दूं, लाइक अल्फा बीटा. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. मैंने बोला कि इसके जीरोस जो है वो अल्फा एंड बीटा है. मैंने एक जनरल नेमिंग कर दी. ठीक है, जनरल नेमिंग का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ऑल आर द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स हैं, बट पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक नेम भी है. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अभी मैंने उनकी जनरल नेमिंग कर दी अल्फा एंड बीटा. उसके आफ्टर जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज मिल जाती है, राइट? जस्ट यस. सो अभी मैंने इसकी नेमिंग कर दी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जीरोस और कोएफिशिएंट में एक रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए. बी का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. और ए का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन. अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगर मैं दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दिस विल इक्वल टू सी अपॉन ए. सी का मतलब क्या है? दैट इज द कांस्टेंट टर्म. और ए का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. अब देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं. आपके जीरोस आए 2 and 3, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 को बोला 2 इज द अल्फा एंड 3 इज द बीटा. इज देयर एनी डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने उसको अल्फा बीटा बोल दिया. अभी अगर मैं रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, सो अल्फा प्लस बीटा शुड बी व्हाट? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? -5. और रिलेशन में माइनस भी है कॉमन.
So -5 upon क्या था? -b upon a, right? So what is a? A is the coefficient of x square. So the answer is 5. बट अगर मैं अपने रूट्स की बात करूं जो मैंने फाइंड किए थे सॉल्व करके, अगर आप इन दोनों का सम करते हैं, व्हाट यू गेट? यू आल्सो गेट 5. ठीक है, सो यस, दिस इज द रिलेशन कि अगर आपने जीरोस खुद से फाइंड किए, उनका सम किया, तो वो सम इक्वल आएगा अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं. रिलेशन मतलब -b अपॉन a, राइट. मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ. द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. c का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? कांस्टेंट टर्म. सो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 6. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a? a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1. 6 आ गया. क्या अब ये 6 ही आएगा जब मैं अपने जीरोस से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब जो मेरे जीरोस आए थे? यस और नो? सो यस, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अगर मैं इससे फाइंड करूं, फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन में बोला गया लाइक यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, तो मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूंगी अभी. आई कैन फाइंड द सम ऑफ द जीरोस बाय द रिलेशन. रिलेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और एनी डाउट? ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए. दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. You wrote that in for alpha plus beta as is equal. Like, can you go to the other slide now? What, Anika? Can you like once show the other slide? This one? Yeah. In this, Just- is it in all cases that 2 plus 3 and those two multiplied will be the alpha beta? यस, ऑलवेज इक्वल. बेटा ये हमेशा वेरीफाई करेगा कि लाइक आप अल्फा बीटा कर रहे हो तो वो अल्फा प्लस बीटा के ही इक्वल आएगा. नॉट पॉसिबल कि आप उसका सम कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए. ठीक है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि लाइक हाँ ठीक है उनका मल्टीप्लिकेशन और सम सेम सा आ जाए, राइट, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो हमेशा अप्लाई करेंगे, राइट. वैसे ऐसा भी होता नहीं है, लाइक आप कोई भी नंबर लोगे तो उसका सम और प्रोडक्ट अलग ही आएगा. So just note down first this and after this आप example note down करें. So yes, this is the relation between the coefficient and the zeros. और zeros को हम roots भी बोल देते हैं. So don't get confused अगर कहीं पे root लिखा हुआ है. So yes, this is the zeros. Okay, just note down this example also. Done? Okay. So yes, this is the relation between the zeros and coefficient for a quadratic polynomial. So अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है एक बार उसको फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस से रिवाइज कर लेते हैं. Yes, identify the degree of the polynomial. Yes, Ridhima. Can you tell me the degree of this polynomial? 2. The degree is 2. Very good. Yes, Swara, write whether the following is a polynomial or not. Yes, this is a polynomial or not. It is a polynomial. Ma'am. Is this a polynomial? Yes, we can transpose x towards 2. Yes, we multiple can write people. it as just like 1 plus 2x, but x कहाँ जाएगा? X तो तब भी denominator में रहेगा. So this is not a polynomial. No. Yes, Soumya, how many zeros can a quadratic polynomial have at most? 2. 2. Yes, Ridhima, how many zeros can a linear polynomial? 1. 1. Very good. And Sakshi, how many zeros can a cubic polynomial have at most? Ma'am, 3. 3. Very good. Find the zero of x plus 5. Bhargavi, can you tell me what is the zero of x plus 5? -5.
minus minus 5. 5. We have to just put it equals to 0 and we get x is equals to minus 5. Yes, Naisha, can you tell me which type of polynomial is this? Ma'am, based of degree it is cubic, and Yes. in weight of term it is trinomial. Yes, if I talk about based on degree, yes, this is cubic. और अगर हम terms की बात करते हैं तो yes, this is trinomial, right? Yes, Anika, can you just tell me, beta, what is the polynomial? This. It's not a polynomial. It's not a polynomial. Very good. It's not a polynomial just because we have x square in denominator. So this is not a polynomial. So yes, is it clear what are the polynomials? What is the degree of the polynomial? What are the zeros of the polynomial? Is it clear, everyone? Yes. Okay. Yes, Find the ma'am. zeros of the polynomial. Are you able to find the zeros of the polynomial? Is this quadratic, cubic, or what? X square minus 9. Quadratic. This is quadratic. And if I talk about based on the terms, अगर मैं terms के basis पे बात करूं तो what? Binomial. Yes, this is binomial. So can you find the zeros of this polynomial? Can I answer? Yes, ma'am. Yes, what are the zeros? -3. देखो अभी yes, this is the quadratic, but इसमें क्या problem है कि अगर मैं ax square plus bx plus c से इसको compare करूं, the value of a is 1, the value of b is 0. Yes, भार्गवी? मैम इसका आंसर -3 + 3 आएगा. हाँ, yes बेटा. एंड इसमें जो c का वैल्यू है दैट इज -9. ठीक है, अभी मैं यहाँ से रिलेशन भी वेरीफाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने वैल्यूज को लिखा है. सो इसमें मुझे कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कोई अदर मेथड यूज करने की नीड नहीं है. आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 और x माइनस 3. सो अगर मैं जीरोस की बात करूं, सो x प्लस 3 को 0 इक्वल पुट किया, आई गेट -3, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, सो x इज इक्वल्स टू 3. इज देयर एनी डाउट? ठीक है. सो अभी अगर मैं इसमें रिलेशन वेरीफाई मुझे करना है कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड अल्फा बीटा इज c अपॉन a, क्या ये वेरीफाई होगा या नहीं? अकॉर्डिंग टू जो आपके जीरोस आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक करिए, और जो आपकी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब a b c की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करो. देखो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 0, मतलब -0 अपॉन 1, तो आंसर क्या हो गया? 0, राइट. c अपॉन a की बात करूं तो -9 अपॉन 1 मतलब -9, और आपके जीरोस क्या आए थे? -3 एंड 3. आप उसका सम करिए, -3 और 3 का अगर आप सम करेंगे क्या आंसर आएगा? 0. और प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? -9. -9. तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है कि अगर हम सम की बात कर रहे हैं वी गेट इट बाय -b अपॉन a, और प्रोडक्ट की बात करें तो c अपॉन a. मैम अगर नंबर स्क्वायर नहीं हो, लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक 15 और समथिंग, तो उसको कैसे सॉल्व करें? अगर आपका फॉर एग्जांपल आप कहना चाह रहे हो कि लाइक x स्क्वायर -15 होता, हाँ समथिंग, तो फिर उसके रियल जीरोस नहीं आते, x स्क्वायर को आप 15 पुट कर देते, राइट, या फिर आप उसको √15 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते थे. बेसिकली हम उसको यहाँ पर √15 का स्क्वायर लिख सकते. फॉर्म तो हम उसको इस फॉर्म में कर सकते हैं डेफिनेटली. वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर. सो वी गेट 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस. स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको रूट में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, done beta. Is there any doubt, anyone? Yes, Ridhima, any doubt बच्चे? No, ma'am. No. Not yet. Swara, any doubt?
No, ma'am. Yes, Soumya. Ridhima, sorry, Aditri. No, ma'am. No doubt. Sakshi. No doubt. Bhargavi. No doubt, No doubt. Naisha and Anega. Any doubt, beta? No, ma'am. नो डाउट. ठीक है. सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 7th 8th एंड 9th इज योर होमवर्क. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है. ये आपके 3 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क. In 7th question you have to just find the zeros of this polynomial. आपको सिर्फ zeros करने हैं. ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ एग्जाम्पल में, राइट? तो एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने डिस्कस कर लिया है तो मैं आपको इसके प्लेस पर एक और इक्वेशन दे रही हूँ. यू कैन टेक 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, राइट? इन द 8th क्वेश्चन वेरीफाई वेदर 2. ओके, अब मुझे एक बात बताओ. मैंने आपको बोला कि जो जीरोस होते हैं उसको पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, राइट? सो इसका मतलब अगर कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरोस है, मतलब या उसका रूट है, तो क्या वो उसको जीरो कर देगी? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो जीरोस थे वो 2 और 3 थे. मतलब 2 पुट करने पे भी आंसर 0 आएगा, 3 पुट करने पे भी आंसर 0 आएगा क्योंकि वो उसके जीरोस है. सो वेरीफाई वेदर 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो आपको रूट्स फाइंड नहीं करने. You have to just put x is equals to 2 in this polynomial. आप 2 पुट करिए, अगर आंसर 0 आता है, yes, this is the polynomial, this is the zero of this polynomial. तो वो उसका 0 है. 0 नहीं आता है तो फिर नहीं है. Is it clear or not? Okay. Find the sum and product of zeros. आपको इनका सम और प्रोडक्ट करना है. You can use any method कि आप पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करो और फिर उसको सम और प्रोडक्ट कर दो. और यू कैन यूज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. These 3 questions are for your homework. कल मैं इसको चेक करूंगी. अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? ओके, आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन करने के बाद यू कैन लीव द क्लास. मैम वो ये बेटा वर्कशीट किस नंबर पे सेंड करना है? वर्कशीट बेटा आपके पास नंबर होगा, मैम। मैम को उस पे सेंड कर देना. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a बाय good बेटा. day. Bye, ma'am. बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am.